So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So we are going to discuss about the new topic of physics, that is going to be your human eye and colorful world. So in this topic we are going to have the brief introduction of human eye, how human eye is working, how human eye parts are working, what are the defects of human eye, what are the causes of defects of human eye, and the lens which we are going to use in which we are going to use to correct the defects of the human eye. So one by one we are going to discuss about the all the things. So first of all, what is human eye? So if we are talking about human eye, what is human eye? Human eye है कि सो ह्यूमन आई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं प्रॉपरली. अगर हम कोई भी चीज़ हम देख पा रहे हैं या हम कोई भी चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं, सो दैट इज़ अ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में ह्यूमन आई जो है बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प अ पर्सन टू सी वेरियस kind of things and colors. अगर कोई भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं तो वो किस चीज़ की वजह से? ह्यूमन आई की वजह से. अगर ह्यूमन आई है तो उसकी वजह से हम हर एक चीज़ को देख पा रहे हैं. सो ह्यूमन आई बेसिकली है क्या? ह्यूमन आई एक डिवाइस है जिसकी वजह से हर एक एक्टिविटी जो हमारे आसपास हो रही है, हर एक कलर जिसको हम सेंस कर पा रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं. सो दैट इज़ अ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट हैं? अब बेसिकली ह्यूमन आई एक डिवाइस है, तो डिवाइस में कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होंगे. सो दोज पार्ट्स आर पपिल, कॉर्निया, इरिस, एक्वस ह्यूमर, कैपिलरी मसल्स, आई लेंस, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व्स एंड रेटिना. सो ये जो पार्ट है, सो दीज ऑल पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज डन बाय ह्यूमन आई. So these parts we are going to discuss one by one. What are the function of these parts and what we are going to what kind of function each and every part is working. So first of all, what is cornea? The uppermost layer of the eye. Uppermost layer means uppermost layer of human eyeball is cornea. If you have seen eye, so it is somewhat like this. The uppermost part which is outward the eye, or the blackish part of eye, which is some kind of outward to the eye, that is your cornea. Function of cornea is to protect eye lens from each and every kind of particles which are coming toward the eye lens, or it is a medium which is a medium which helps to resist high intensity light toward eyeball. If we have a light which is of high intensity, it will harm our eye. As we have seen, if the laser light is coming toward our eye, so it is going to make a defect on our eye. So for that, a cornea is a part which is going to protect this part. So this is going to be a part which is helpful to protect our eye from a high intensity light. So second part will be our aqueous humor. It is a kind of liquid which is filled between cornea and iris. It is a kind of liquid, means अगर देख पा रहे हैं, अगर if we are able to see any object, so this is all because of eye lens. eye lens है तो हम देख पा रहे हैं.
बट अगर आई लेंस के बीच में कुछ होगा, आई लेंस अगर आई लेंस एडजस्टेबल है, आई लेंस को साफ करने के लिए कुछ चाहिए, जो चीज़ साफ करने के लिए आई लेंस चाहिए दैट इज अवर एक्वस ह्यूमर. इट इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड दैट हेल्प आई लेंस टू बी क्लीन. सो ये इसका काम सिर्फ यही है, इसका काम सिर्फ आई लेंस को साफ रखना और आई लेंस का प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना है. थर्ड चीज़ जो हमारे पास है इरिस. सो थर्ड चीज़ जो हमारे पास है, थर्ड चीज इज गोइंग टू बी अवर iris. Third cheese will be iris. A layer between eye lens and aqueous humor. अब अगर वो लिक्विड है, अगर वो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो अगर आई लेंस के पास जाके रुक जाएगा तो हम क्या प्रॉपरली किसी चीज़ को देख पाएंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट. सो दैट्स वाई एक लेयर होती है बीच में, आई लेंस और एक्वस ह्यूमर के बीच में एक लेयर होती है जिससे हम क्या कर पाते हैं, उसको प्रॉपरली देख पाते हैं. अगर आई लेंस है, आई लेंस के आगे एक लेयर होगी तो वो क्या करेगी, उस आई लेंस को प्रोटेक्ट करेगी. जैसे यहाँ पे एक लेयर है, एक पतली सी लेयर है, सो ये क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी. प्रोटेक्ट कैसे करेगी? अगर ये वाला लिक्विड इसके ऊपर फ्लो कर जाए, प्रॉपरली इसके ऊपर रह जाए, मतलब प्रॉपरली रह जाए. एक आई में एक पॉइंट होता है, एक आई पॉइंट, दिस इज आई पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इज गोइंग टू बी इनसाइड द लेंस. सो अगर ये वाला पॉइंट है, इसको पपिल बोलते हैं. सो अगर जो लिक्विड है वो आई लेंस के ऊपर फ्लो कर जाएगा तो क्या प्रॉपरली देख पाएंगे या प्रॉपरली वो चीज़ हो पाएगी? दिस इज इम्पॉसिबल. सो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लग जाता है, हमारे पास एक लेयर है जिस लेयर को क्या बोलते हैं, इरिस. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिलरी मसल्स. अब कैपिलरी मसल्स क्या है? अगर आई लेंस है, कॉर्निया है, उसको होल्ड भी करना है. आई लेंस को होल्ड करने के लिए, आई लेंस को होल्ड करने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं कैपिलरी मसल्स. सो कैपिलरी मसल्स क्या करती हैं, जो हमारे पास आई लेंस है, जो आई लेंस जिसके वजह से हमारे पास इमेज बनेगी, उसको क्या करेगा, वो होल्ड करेगा. अब जो हमारे पास लेंस कौन सा होता है, हमेशा कन्वेक्स लेंस, थिकर फ्रॉम एज. अब इसका एज जो पतला होगा, सो वो क्या करेगा, जो मसल्स होंगी उनको क्या कर लेगा, वो होल्ड कर लेगा. अगर मसल्स ने उसको होल्ड कर लिया तो वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. अब टाइट होगा, जिसने रिफ्रैक्शन की वीडियो देखी है उसको पता होगा कि जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, ऑलवेज एक रियल इमेज फॉर्म करेगा. अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो वो क्या होगी, ऑलवेज उल्टी होगी. सो अगर कोई भी जो पास आउट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लाइक ये रे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रे दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी. अगर यहाँ से आई तो ऐसे बेंड हो जाएगी. सो अब भी ये वाली जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इनको मीट आउट कहाँ करना है, यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. थोड़ी थोड़ी रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ पे जाके हमारे पास इमेज बन गई, रेटिना पे. ठीक है. अब जो आई लेंस है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक रियल इमेज. सो यहाँ पे क्या जाके बनेगी, एक इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज है. अगर हमें कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो वो हम सीधी देख रहे हैं, बट अगर इमेज जहाँ पे जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, हमारे पास उल्टी बन रही है. सो उस इमेज को सीधा कौन करेगा, हमारे पास उसको किस चीज़ का काम होगा, वो ऑप्टिकल नर्व्स का. उसके बाद हमारे पास एक जो इसका पार्ट रहेगा वो है क्या, विट्रस ह्यूमर. It is also a liquid, whitish liquid, which is filled in between eye lens and retina. So ये क्या करेगा, हमें एक मीडियम प्रोवाइड कर देगा. सपोज करो हमारी जो लाइट जा रही है, जैसे रिफ्रैक्शन का हमने पार्ट किया था, रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, वो टू मीडियम फिनोमेना है. सो फर्स्ट मीडियम तो मेरे पास एयर है, सेकेंड मीडियम मेरे पास एक मीडियम मेरे को और भी चाहिए जिसके बीच में से ये पास आउट होगा. सो वो मेरे को जो मीडियम चाहिए वो मेरे पास क्या है, विट्रस ह्यूमर. सो विट्रस ह्यूमर इज अ काइंड ऑफ मीडियम which is responsible for each and every kind of refraction that is happening in human eye. And if we are able to see any kind of object,
This is all because of vitreous humor. Because if there is no medium, there will be a no refraction. अगर मीडियम ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगी, नहीं हो पाएगी. सो उस रिफ्रैक्शन को करवाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, विट्रस ह्यूमर. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला हमारा पार्ट बचा इस चीज का वो है ऑप्टिकल नर्व्स. उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल नर्व्स. अब ऑप्टिकल नर्व्स बेसिकली होती क्या है, ऑप्टिकल नर्व जैसे ही रेटिना पे इमेज फॉर्म हुई वो कौन सी हुई थी हमारे पास, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई. रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई लेकिन हमें तो सीधा दिख रहा है, तो हमें वो सीधा कैसे दिख रहा है, जो वो वाली इमेज फॉर्म हुई है वो हमारे पास कहाँ पे जाएगी, हमारे पास ऑप्टिकल नर्व्स के पास. सो ऑप्टिकल नर्व्स का काम क्या है, नर्व्स का काम क्या है, हर एक सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसफॉर्म करना. अगर ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है तभी वो सिग्नल प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, या हमें क्या पता अभी हम क्या देख रहे हैं. अगर मैं अब कैमरा की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को पता लग रहा है अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ. अगर मेरे को ये सेंस ही नहीं है वो मैं किस चीज़ की तरफ देख रहा हूँ तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा वो सीधा है या उल्टा है. तो उस चीज़ के लिए जो चीज़ मेरे को रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑप्टिकल नर्व. सो ये पूरे का पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये पूरे का पूरा क्या है हमारे पास, एक ट्रांसमिशन सिस्टम. जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे हमारे पास ये पूरा क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपने पास देख पा रहे हैं, प्रॉपरली उसको सेंस कर पा रहे हैं. सो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल नर्व्स क्या करेगा, ऑप्टिकल नर्व देखो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करेगा, ऑप्टिकल नर्व्स पास आउट अ मैसेज फ्रॉम द रेटिना to the brain, helping that part to be proper messaging and also convert inverted image to proper image toward brain. अब वही दिक्कत वही चीज, जैसे ही ऑप्टिकल नर्व ने क्या किया, मैसेज रेटिना से उठाया. अब रेटिना से मैसेज उठाएगा तो क्या करेगा, रेटिना तो मैसेज दे रहा है, रेटिना ने तो एक इमेज बना के छोड़ दी, इन्वर्टेड इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई, वहाँ पे उल्टी इमेज है. हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमें सीधी देखनी है, तो सीधी कौन दिखाएगा हमें, ऑप्टिकल नर्व्स. ऑप्टिकल नर्व्स क्या करेगा, यहाँ से इमेज को उठाएगा, इमेज को प्रोसेस करेगा, इमेज को प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, ब्रेन तक पहुँचा देगा. जैसे ही चीज़ ब्रेन तक पहुँची वो क्या हो जाएगी, हमें एक मैसेज बन जाएगा. जो मैसेज हम देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल नर्व मैसेज एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आई. अब मेरे को लगता है भी अगर इसमें कुछ भी रह गया है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से जो मैंने करवाना था आई बॉल के बारे में वो प्रॉपरली हो चुका है. इसका एक एक पार्ट जैसे कॉर्निया क्या है, इरिस क्या है, आई पॉइंट क्या है, एक्वोस क्या है, लेंस क्या है, कैपिलरी मसल्स क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है, रेटिना क्या है और ऑप्टिकल नर्व्स क्या है, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो हमने देखना है दैट इज अवर डिफेक्ट्स. अब पता चला ह्यूमन आई कैसे काम करती है. ह्यूमन आई ऐसे नहीं कि ह्यूमन आई एक सिंपल पार्ट है, उसको देख लिया उससे हम देख पा रहे हैं, दैट इज अ ह्यूमन आई. सो ह्यूमन आई कैसे काम करती है, ह्यूमन आई अपने अलग अलग पार्ट से काम करती है. अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन आई के अंडर दैट इज गोइंग टू बी अवर डिफेक्ट्स ऑफ विजन. तीन टाइप के डिफेक्ट हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर. अब 3 टाइप के डिफेक्ट हैं. फर्स्ट इज मायोपिया, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड इज गोइंग टू बी एस्मोपिया और कलर ब्लाइंडनेस. अब मायोपिया क्या है, मायोपिया इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच near objects are clear but far objects
आर नॉट क्लियर। अब दिक्कत क्या आएगी मायोपिया में, क्या दिक्कत आएगी मायोपिया में? जो हमारी नज़दीक वाली चीज़ होगी वो हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या है, जो नियर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है। सो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई विल बी अवर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर से हम क्लियर कट देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही हम आगे आएंगे हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे, बिकॉज द फोकल लेंथ विल बी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज 25। सो फोकल लेंथ जो हमारी आई बॉल में लेंस फिट है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या है, हम लोग कितना नजदीक जाके देख सकते हैं, कितना दूर जाके देख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो अभी हम बात कर रहे हैं मायोपिया की। सो पहले मायोपिया क्या है, मायोपिया को समझो प्रॉपरली। 3 डायग्राम से समझाता हूँ आपको। सो मायोपिया के लिए सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक आई है। आई के अंदर क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है, ठीक है जी। अब जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ से एक रे आई, एक यहाँ पे आई। सो हमारी इमेज कहाँ पे बन गई? रेटिना पे इमेज बन गई। अब सेकंड में क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड केस होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पास आई बॉल है। आई बॉल में क्या एक लेंस है। अब लेंस पे क्या होगा, जैसे ही दूर से जो लाइंस आ रही हैं, दूर से जो लाइंस आ रही है उनको मीट आउट तो कहाँ पे होना है? रेटिना पे। बट वो कहाँ पे मीट आउट हो रही है हमारे पास? रेटिना से आगे। रेटिना से पहले ही मीट आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारी इमेज बनी वो बन तो गई, इमेज हमारी बन तो गई, बट क्या बनी? प्रॉपर नहीं बनी। प्रॉपर इमेजिंग इज नॉट देयर। अब अगर प्रॉपर इमेज नहीं बनी तो उस इमेज का फायदा भी क्या? कुछ फायदा नहीं है। सो इस चीज को जो टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। सो कॉनकेव लेंस में क्या है, जैसे ही हमारे पास फार बिहाइंड से ऑब्जेक्ट आया, इसका काम क्या है? डाइवर्ज करना। सो ये लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। अब जैसे ही डाइवर्ज कर रहा है तो इसका एक जो लाइट डिवर्स कर रहा है वो कहाँ पे? एक पॉइंट पे मीट आउट होगी, फोकस पे। जैसे ही वो मीट आउट हुई तो हमने क्या किया, उससे रिफ्रैक्शन शुरू कर दी। अब उससे जैसे ही हमने रिफ्रैक्शन शुरू की, जैसे ही हमने वहां से रिफ्रैक्शन की तो हमारे पास मीट आउट कहाँ पे हो गया? वो कहाँ पे मीट आउट हो गया जी? रेटिना पे। और जैसे ही रेटिना पे हमारे पास मीट आउट हुआ तो हमारे पास एक इमेज क्या बन गई? प्रॉपर इमेज बन गई। सो प्रॉपर इमेज कैसे बनी? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो पॉइंट है, जो हमारे पास जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट कहाँ से हो रही है? इन्फिनिटी से। बट जैसे ही इन्फिनिटी से रिफ्रैक्ट आई, वो लेंस पे टकराई, हमें पता है ये लेंस क्या है, एक वर्चुअल फोकस मीट आउट करेगा। अब इन्फिनिटी से रे आ रही है तो वो क्या कर देगा, इसको फोकस पे कन्वर्ट कर देगा, फोकस पे ले आके छोड़ देगा। अब जैसे ही हमने फोकस में से एक लाइन निकाली, सो फोकस पे से जैसे ही हमने लेंस पे मारी तो लेंस पे लगने के बाद वो क्या हुई? दूसरे लेंस में गई। दूसरे लेंस से फिर से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुई। और जैसे ही रिफ्रैक्शन हुई तो वो दोनों रेज कहाँ पे आके मीट आउट होगी? रेटिना पे। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड दी कनकेव लेंस। तो जैसे हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, जो कनकेव लेंस होगा वो ऑलवेज क्या करेगा? एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो इस टाइप ऑफ जो डिफेक्ट होगा, मायोपिया डिफेक्ट होगा, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस लगेगा? उसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा? कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस क्या करेगा? जो दूर वाली चीज होगी उसको क्या कर देगा? हमें एक फार नियर पॉइंट पे लाके छोड़ देगा। और जैसे ही नियर पॉइंट पे वो आई, नियर पॉइंट से फिर से हमने रिफ्रैक्शन करवाई तो वो प्रॉपरली क्या हो गई? मीट आउट होगी एट रेटिना।
अब ये दिक्कत आती क्यों है? ये दिक्कत आती है बिकॉज आई बॉल, जो आई बॉल का साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिगर। आई बॉल क्या हो जाएगी? सूजनी शुरू हो जाएगी। कभी देखा होगा आई बॉल जैसे 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 सूजती है तो वो क्या होती है, उसका जो साइज होता है बिग हो जाता है। अब जैसे ही साइज बिग हुआ तो हमें क्या दिक्कत आ गई? मायोपिया की। अब मायोपिया को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगा दिया? एक डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव lens. So this lens help a person to tackle out the defect of myopia. So I hope this is clear to everyone. So our next topic is going to be hypermetropia. So next part will be our hypermetropia. अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? अब इसमें क्या था, हमारा जो फार वाला ऑब्जेक्ट था वो प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा था। अब उसमें हमारे पास क्या होगा? जो नियर वाला ऑब्जेक्ट होगा, नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट सो क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट विल बी अ क्लियर पाथ। दिस टाइप ऑफ जो डिफेक्ट, अगर इस टाइप का डिफेक्ट है तो वो हमारे पास कहाँ पे आता है? 40 ईयर ओल्ड के बाद। जैसे ही एक पर्सन 40 ईयर को क्रॉस करता है, 40 ईयर लाइन को क्रॉस करता है, तो उसको ये डिफेक्ट टैकल करना पड़ता है। अब इस डिफेक्ट को समझो आप 3 डायग्रामों के साथ। So this is the first one. Here we are having a lens. Here we are having a near point, and this is going to be happen. This is going to be, so first one is going to be this near point. Second diagram will be our second diagram will be our this. Here we are having a lens. The rays are coming from infinity. Reading out that retina. Rays are coming out infinity. Reading out that retina. Principal axis. ठीक है जी। अब थर्ड में क्या होगा? थर्ड में अब देखो क्या हुआ। इसमें क्या था हमारे पास? जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा बिकॉज आई बॉल क्या हो जाएगी? आई बॉल विल श्रिंक। अब आई बॉल जैसे श्रिंक होगी तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड द रेटिना। रेटिना के पीछे जाके बन जाएगी। हमें क्या मतलब, कहाँ पे कहीं पे मर्जी बने, बट बनेगी कहाँ पे? रेटिना के पीछे। क्यों बनेगी? बिकॉज जो है हमारे पास आई बॉल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट दूर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट की रेज क्या है दूर से आई तो वो क्या हो जाएगी? मीट आउट एट रेटिना हो जाएगी। सो जैसे ही इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आ रही है, तो जैसे ही इन्फिनिटी से रेज आई कहाँ पे जाके मीट आउट होगी? रेटिना पे होगी। बट अगर वही दिक्कत हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट की आ रही है, सो दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हमने वहां पे एक क्या किया? कन्वेक्स लेंस को इंस्टॉल कर दिया। एक तो पहले ही हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, एक हमने क्या किया? एक और डबल कन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। अब जैसे ही हमने कन्वेक्स लेंस को यूज किया तो उसने क्या किया? वो कन्वर्ज करेगा लाइट्स को। कन्वर्ज कैसे करेगा? उसने क्या किया? जो नियरेस्ट पॉइंट वाली लाइट थी उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। और जैसे ही फेंका वो क्या कर दिया? हमारे पास मीट आउट एट फोकस। जैसे ही फोकस पे आई वो और नजदीक चला गया। वहां से अगर हमने रिफ्रैक्शन फिर से करवाई तो वो क्या आ जाएगी? वो कहाँ पे जाके मीट आउट हो जाएगी? एक पॉइंट पे जाके मीट आउट हो जाएगी। सो दैट पॉइंट विल बी रेटिना। सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट विल बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ convex lens. Firstly, we have a myopia treated with the
concave lens. Second is hypermetropia, treated with convex lens. And third thing is going to be your presbyopia. So presbyopia कैसी होती है? presbyopia एक ऐसी दिक्कत है जो ना मायोपिया में आती है ना हाइपरमेट्रोपिया में आती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ को देख पा रहे हैं, या तो हम उसका वर्टिकल एंगल देख पाएंगे या उसका हॉरिजॉन्टल एंगल देख पाएंगे। मतलब वो चीज़ हमें एक लाइनों में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिकल लाइंस में या हॉरिजॉन्टल लाइंस में। या फिर हमारे पास क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। कलर, हम जो कलर को देख रहे हैं, हम किसी भी कलर को प्रॉपरली देख नहीं पाते। सो दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है? प्रेसोपिया। प्रेसोपिया के लिए हमारे पास यूज होता है सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं करवाया जा रहा, वरना सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में आपको बता दूं। सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो मिक्सचर होता है दोनों लेंस का। दोनों लेंस को अगर हम मिला दें तो एक सिलेंडर टाइप फॉर्म हो जाएगा। सो बोथ लेंस इफ कंबाइन दे फॉर्म अ सिलेंडर, सो दो सिलेंडर इज नोन एज सिलेंड्रिकल लेंस। उस लेंस में क्या होगा, हमारे पास दोनों लेंस होंगे। दोनों लेंस क्या करेंगे, अगर दूर की चीज़ है उसको नज़दीक कर देंगे, नेड़े की चीज़ है उसको दूर कर देंगे। सो जैसे ही वो चीज़ हुई, हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस थी वो ट्रीट हो गई। क्योंकि हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस किस चीज़ के लिए आ रही है, बिकॉज हम लोग प्रॉपरली उसको देख नहीं पा रहे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है या हमें को वर्टिकल दिख रही है। अगर तो वर्टिकली प्रॉपर दिख रही है तो हमें वर्टिकली दिखेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कोई पार्ट हमको प्रॉपरली नहीं दिख पाएगा, उसका सिर्फ वर्टिकल पार्ट दिखा करेगा। अगर वर्टिकल दिख रहा है तो सिर्फ वर्टिकली दिखेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कोई भी पार्ट हमें नहीं दिखेगा। सो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसोपिया। ठीक है जी। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज इस लेक्चर में हमने जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आज हम सिर्फ ह्यूमन आई को कवर करेंगे। ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई कैसे काम करती है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट क्या है। उसके बाद जो कलरफुल वर्ड वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक, रिफ्रैक्शन एंड नेचुरल फिनोमेना। अब हमारे पास क्या चीज रहेगी, ये 4 टॉपिक हमारे पास अभी पेंडिंग है इस चैप्टर के। सो ये चारों टॉपिक मैं अगले लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हमारे पास अब ये वाला चीज है, जो ये वाली पूरी की पूरी चीज जो हमारी प्रीवियस 3 या 4 वीडियोज हैं, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट खत्म किए हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। जैसे ही हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को खत्म किया, हमने क्या शुरू कर दिया, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई जैसे ही हमने खत्म किया, हम लोग क्या करेंगे शुरू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रिज्म वाला पार्ट। सो प्रिज्म वाले पार्ट में ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई पार्ट आपको मिसिंग लग रहा है, कोई पार्ट आपको लग रहा है हमने नहीं करवाया, सो प्लीज़ उसको आप कमेंट्स में टाइप कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।